जो कुछ भी जायदाद थी बेच के गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कराई और इसे उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने भी उन्होंने 1920 के कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर के विच स्वागत कमेटी का चेयरमैन बनाया थी। उन्होंने विवादता उन्होंने स्पष्टवादिता उन्होंने लिए बहुत अच्छी सी। इसे कारण है कि कुछ लोग उन्होंने दुश्मन भी बन गए। तो इसे तरीके नाल उन्होंने 23 दिसंबर 1926 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਆ ਔਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1911 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ 2011 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਰਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 23 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਕਾਂਗੜੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 22 ਫਰਵਰੀ 1856 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤਲਵਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1902 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Chief guest Mr. B.S. Nagra, NRI of Nawashahar, President Manager, Principal Sir, committee members, esteemed teachers, and all my dear friends. Today, on the occasion of Martyrdom Day of Swami Shraddhanand, I feel honored and obliged to stand in front of you and highlight some ideas of one of the greatest gems India has ever produced, Swami Shraddhanand. Swami Shraddhanand was an Indian educationist and an Arya Samaj missionary who propagated the teachings of Swami Dayanand. This included the establishment of educational institutes like the Gurukul Kangri University and played a key role on the Sangathan and the Shuddhi, a Hindu reform movement in 1920s. Swami Shraddhanand was born on February 22, 1856 in the village of Talwan in the Jalandhar district of Punjab province of India. He was the youngest child in the family of Lala Nanak Chand. His given name was Brihaspati, but later he was called Munshi Ram by his father, the name that stayed with him till he took sannyas in 1917. His school education began at Varanasi and ended at Lahore. He adopted atheism after a few incidents such as when he was prevented from entering the temple while a noble woman was praying. In 1892, Arya Samaj was separated into two fractions. He left the organization and formed Punjab Arya Samaj. In 1897, after the assassination of Lala Lekram, he became his successor and headed the Punjab Arya Pratinidhi Sabha and started its monthly journal Arya Musafir. In 1902, he established a Gurukul in Kangri near Haridwar. This school is now a recognized university known as Gurukul Kangri University. He first met Swami Dayanand Saraswati when Swami Dayanand was visited Bareilly to give lectures. His father was handling arrangement and security at the events. Munshi Ram's father asked Munshi Ram to attend the lectures, but Munshi Ram, who originally went with the entire team, Swami Shraddhanand, till now known as Mahatma Munshi Ram, took sannyas
protest movements. He began working with the Congress, which he invited to hold its session at Amritsar in 1919. This was because of Jallianwala tragedy, and no one in the Congress committee agreed to have a session at Amritsar. Shraddhanand presided over the session. He also joined the nationwide protest. In 1923, he became the president of Bharatiya Hindu Shuddhi Sabha, created with an aim to reconvert Muslims, specifically Mulkana Rajputs, in Western United Province. This antagonized the Muslim and brought him into direct confrontation with Muslim clerics and leaders of the time. On December 23, 1926, he was motion at the Guwahati session of the Congress on December 25, 1926. Today, on behalf of all our young generation, I take a pledge that we all will incorporate his teachings in our daily life, and we shall always strive for the progress of our country. Thanks. Have a nice day. God bless you all. आप सब जानते हैं कि आज हम जहां स्वामी श्रद्धानंद जी का शहीदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, सर्वप्रथम मेरी ओर से स्वामी श्रद्धानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और समाज के तेजस्वी स्वामी श्रद्धानंद जी को आदर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आर्य समाज के तेजस्वी सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी का व्यक्तिगत बहुआयामी है। वे जहाँ धार्मिक नेता, धर्म प्रचारक, समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे, वहाँ वे कलम के धनी उत्कृष्ट लेखक तथा साहित्य सिर्जक भी थे। श्रद्धा के सदन पूज्य थे, श्रद्धालु सन्यासी थे, श्रद्धा भरपूर में चले स्वामी, श्रद्धा के अभ्यासी थे। बता गए श्रद्धा को श्रद्धा की प्रतिमा एक, बता गए श्रद्धा को श्रद्धा की प्रतिमा एक, डटकर श्रद्धा क्षेत्र में श्रद्धा के प्रकाशी थे, अभ्युपदेशक थे, वैदिक प्रचार किए, सही सत्य भावना के परम विकासी थे। जिसने तीन गोलियों को सहा सीने पर, जिसने तीन गोलियों को सहा सीने पर, वही एक आर्य श्रद्धानंद सन्यासी थे। वीतराग विवेकी विवेचक सत्य के खोल पोल समक्ष बताए धर्म सही को, ईसाई मुस्लिम पंथवादी भ्रष्ट जालिमों को, वैदिक निनाद से जगाए नींद गाहों को। शेर सी दहाड़ कर सामने रहे थे डट, शेर सी दहाड़ कर सामने रहे थे डट, खोलते पापों की बोल देखते थे सही को। होके बलिदान इसी श्रद्धा के में जान बीच, पूर्ति करके स्वामी समस्या शेष रही को। उत्कृष्ट स्फूर्ति के स्रोत ये बहाए एक, उत्साह और साहस के श्रद्धा भाव स्वामी थे। निर्भीकता सचेत बल वीरता के पूज्य बड़े, भारत के वेद पथ प्रदर्शक स्वामी थे। सामाजिक धार्मिक सुधारक दिव्य देव, राष्ट्र सुनिर्माता भव्य भाव के सुकामी थे। करमवीर धीरवंत स्वतंत्रता के उपासक, इसी पे हुए वे बलिदान सत्यगामी थे। समस्त संसार को देखना चाहते आ रहे हैं, निस्वार्थ उत्थान कर देश में दिखाए थे। जीवन को आदर्श बनाना लक्ष्य भावना थी, पूर्ण कार्यों को करके ही बताए थे। असीम साहस को वो मूर्ति सन्यासी रूप दे दीप्यमान देव प्रकाश बढ़ाए थे। गुरुकुल कांगड़ी के गौरव दिखाए चले, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद यश गाए चले। गुरुकुल कांगड़ी के गौरव दिखाए चले, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद यश गाए चले। धन्यवाद। स्वामी श्रद्धानंद जी ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ਾਇਨਾ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਨਾ। आज श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस पर मैं अपनी तरफ से और अपने विद्यार्थी साथियों की तरफ से इस परम गुरु को अपनी हार्दिक भावना से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महापुरुषों का जीवन प्रकाश स्तंभ के समान होता है, जो अविद्या अंधकार के गहरी खाई में पड़े मानवों को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करता हुआ मुक्ति के मार्ग पर चला देता है। जब हम श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, जगत गुरु
ऊंच नीच, जातिवाद, बाल विवाह, स्त्रियों को शिक्षा अधिकार से वंचित रखना, अविद्या का जाल और ऊपर से अंग्रेजों की गुलामी। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण के लिए गुरुकुल खोलने की योजना बनाई। उस समय अंग्रेजी जीवन की पद्धति आ चुकी थी और लोग उसी का अनुकरण कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तक्षशिला और नालंदा के साथ भारत की लुप्त हो चुकी गुरुकुल परंपरा को पुनः स्थापित किया और इसे स्थापित करने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद जी को ही जाता है। उनके बारे में ये शब्द कहने उचित होंगे, अंग्रेजी छुड़ा के हिंदी का नक्शा जमा दिया, हिंद की जबान को भाषा बना दिया। इसी तरह सभी धर्मों का मान NRI उगे समाज सेवक एजुकेशनिस्ट श्री सुरेंद्र मोहन तेजपाल साहब एक्टिंग प्रेसिडेंट आर्य समाज नवांशहर, श्री विनोद कुमार जी भारद्वाज साहब प्रेसिडेंट ACT कॉलेज नवांशहर, श्री राजेंद्र प्रेमी जी, श्री उनेश कुमार शर्मा जी मैनेजर दोआबा आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साडे राह नूं रचनाउण वाले मार्गदर्शन करने वाले श्री वरिंदर कुमार सरीन जी प्रेसिडेंट दोआबा आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवांशहर, मेरे बड़े भाई साहब साबका प्रिंसीपल श्री सतपाल जी उमर साहब, प्रिंसीपल मैडम मिसेज कांता सिंह, डबल आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिसेज गुप्ता, मेरे अंतक अध्यापक साथी, बाहरों आए मेहमान, दोस्त मित्र, पेरेंट्स ते मेरे बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला तो मैं अज दे जिहड़े साडे मुख मेहमान ने श्री BS नागरा जी का बहुत तहे दिलों शुक्रगुजार हैं, जिन्हों ने साडे छोटे ਜਿਹੇ सदे नूं प्रवान किया। मैं इत्थे गल भी बखूबी दसना चाहूँगा, त्रिपाठी साहब ने मैंने दसिया कि जब सवेरे इन्हों असीं कहा कि तुसीं पहुँच जाओ, तो उन्होंने जिहड़े मिसेज है उन्होंने नाल आउणा सी और वो शायद सर्दी के नाल काफ़ी बीमार सन, पर इसके बावजूद भी नागरा साहब ने जिहड़ा साडा सद्दा कबूल किया और अपनी कमिटमेंट नूं पूरा किया। सो सर तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैडम के ढिले मੱਠੇ होने पर भी तुसीं साडे कोले आउणा जिहड़ा जरूरी समझिया। जिस तरह के सारे बच्चों को ये पता है कि असी स्वामी श्रद्धानंद जी का जिहड़ा बलिदान दिवस नूं मनाउण जा रहे हैं, साडी सत्कारयोग मैनेजमेंट ने ये साडा मार्गदर्शन किया कि आने वाली जिहड़ी पीढ़ी है, जिहड़े साडे सीनियर्स ने साडे देश के लिए कुर्बानी की या बहुत अच्छी टीचिंग रखियां सी, वो साडे नवी पीढ़ी भुलती जा रही है। सो असी कोशिश की है कि स्वामी श्रद्धानंद जी नूं याद किया जाए। सो बहुत सारिया गल्लां हो चुकियां ने, मैं सिर्फ 2-3 गल्लां साझियां करूँगा। प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी श्रद्धानंद जी जिथे उगे समाज सेवक देशभक्त सन, उत्थे वो वैदिक धर्म के बहुत बड़े प्रचारक सन। एक गल मैं जरूर इत्थे विद्यार्थियों को दसनी चाहूँगी कि बेटा जिंदगी दे विच बहुत कुछ हुंदा, पर छोटे छोटे टर्न पॉइंट्स हुंदे ने जिथे बंदे की जिहड़ी जिंदगी है चेंज हो जाती है। सो स्वामी जी भी साडे वर्गे सधारण बंदे सन, पर एक बार जब उन्होंने स्वामी दयानंद जी नूं सुनिया तो उन्होंने जिंदगी दे विच बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने आम इंसानों के राह नूं छड्ड के अपनी सारी जिंदगी सेवा उत्ते ला दी। दूसरी गल मैं ये गल करनी चाहूँगा कि जिस दिन उन्होंने शहीद किया गया, उस तो 2 दिन पहला उन्होंने नमूनिया का एक बहुत बड़ा अटैक होया और उन्होंने डॉक्टर उन्होंने दोस्त ही सीगे अंसर, वो भी मुस्लिम सन, उन्होंने उसका इलाज किया और उन्होंने बचा लिया। पर अगले ही दिन जो दूसरा मुस्लिम सी रशीद, उन्होंने शूट कर दिता। इत्थे मैं गल दसनी चाहूँगा कि दुनिया तो सारे ने चले जाना, पर उन्होंने बचाने वाला भी एक मुस्लिम सी और उन्होंने जान लैण वाला भी एक मुस्लिम सी। सो उन्होंने इस घटना ने इस तो इलावा वो कदे भी जातां
ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪ ਵੀ ਕੈਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ स्वामी सदानंद जी ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ, मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ कि शोर बिल्कुल ना करो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तुसी इत्थे सुनन आए हो ना कि इत्थे कोई रौला रप्पा पाना आए हो। हले भी आवाज़ आ रही है। प्यारे बच्चों, गल नूं जिहड़ा बोलण वाला हुंदा वक्ता उहनूं कहंदे आ, उहदी गल नूं सुनन आए आ ना कि आपां कुछ होर करना है। सो अज दे मुख मेहमान नागरा साहब, मेरे आर्य समाज नाल संबंधित सहयोगीगण, इस स्कूल के अध्यापक वर्ग और प्यारे बच्चों, दो मित्र सी। दो मित्रों विचों एक जिहड़ा मित्र सी उहनूं आर्या मुसाफिर कहंदे सी और जिहड़ा दूसरा मित्र सी उसनूं कल्याण मार्ग दा पथिक कहंदे सी। दोनों की उम्र का कुछ फर्क सी। जिहड़ा आर्या मुसाफिर सी उसनूं एक मुसलमान ने छुरे नाल मारिया ते जेड़ा कल्याण मार्ग का पथिक सी, मुसाफिर पथिक सी गया, उसनूं एक मुसलमान ने गोली नाल मारिया। वो दो कौन सी? एक सा सीगा लेख राम जी ते दूसरे सी लाला मुंशी राम। लेख राम नूं 697 नूं गोली नाल छुरे नाल मारिया और दोनों का मिशन एक सी। और स्वामी सदानंद नूं 23/12/26 नूं एक मुसलमान ने गोली नाल मारिया। ते मैं जो कुछ स्वामी सदानंद बारे पढ़िया उस मैं कह सकता, पहले भी एक बुलारे ने कहा सी कि उन्होंने जो कुछ किया प्रैक्टिकल काम किया। ऋषि दयानंद तो बाद सब तो ज्यादा अगर काम किया आर्य समाज का तो स्वामी सदानंद ने। देखो, पहले सब तो शुद्धि लहर चलाई। शुद्धि लहर उन्होंने अपने घर में फंक्शन किया और इन्नी विरोधता उन्होंने हुई, कोई कहने की हद नहीं। दूसरा, शुद्धि लहर दे विच रहती कौन सी? वो सिगे आधर्मी, हिंदुओं तो आधर्मी
उन्होंने रहतियां नू एक ऐसा फंक्शन किया, ऐसा कॉन्फ्रेंस की, कोई उन्होंने सारियां नू शुद्ध किया और ये नाल उन्हां दी और बल्कि रहतियां नाल करन तो बाद उन्हां नाल कई लोगों के रिश्ते नाते कराए, क्योंकि रोटी और बोटी का सवाल है। और उस तो बाद जो भी काम किया उन्होंने प्रैक्टिकल काम किया। दूसरा उन्होंने विधवा विवाह भी की, उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े अपने नजदीकी नू ईसाइयां की कुड़ी विधवा हो गई, उसका नाम सी सुमित्रा, उसकी अपने घर में शादी की। और इस तो बाद उन्होंने अपनी आजादी विवाह के हक सी, अपनी बेटी का विवाह उन्हें आजादी जाति विच कीता, दूसरी जात विच कीता। मैं तुहानूं दसना चाहना कि स्वामी श्रद्धानंद ने ऋषि दयानंद के जिहड़े प्रोग्राम सी उन्होंने प्रैक्टिकल अपने जीवन से लागू किया। इंदर जी का दूजा नाम इंदर जी, दो बच्चों को देखो, मैं अज भी कहना ये गल जिहड़ी है ना इन्नी आसान नहीं है कि अपने घर के दोनों बच्चों को ऐसी जगह ले जाना जिथे कि जंगल सी और काम शुरू करना गुरुकुल कांगड़ी का। होर मैं दसा कि ऋषि स्वामी श्रद्धानंद दी दो कुड़ियां सी, एक का नाम सी वेद कुमारी और दूसरे का नाम सी हेमा कुमारी। हेमा कुमारी दी मरण तो छेती बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका पति जिहड़ा सीगा उसने सब कुछ छड्ड के, बड़ा अमीर आदमी सी, सब कुछ छड्ड के वो गुरुकुल कांगड़ी में आके पढ़ाने लग पिया। सारी जायदाद तो उसने बेच दी और सारे पैसे जिहड़े थे गुरुकुल कांगड़ी में जमा करा दिए। मैं तुहानूं प्रैक्टिकली दसा कि एक इंसान कितना नस है। वेद कुमारी का ब्याह जिहड़ा सीगा उन्होंने आजादी जाति विच कीता और उस तो बाद उथे प्रोफेसर रामदेव जेड़े के महात्मा हंसराज के भरा, मैं बड़े बड़े महापुरुष। इस तो बाद एक मास्टर गोविंद दास जी सी, लघु राम स्कूल इतने जंदर लगे हुए सी, उन्होंने अपना जीवन उत्थे जाके स्वामी श्रद्धानंद दे अर्पण कर दिता कि लो बेटो मेरे को जिन्ना काम तुसीं करो। इस तरह के नाम स्वामी श्रद्धानंद नाल वो लोग गए जिन्होंने आपा वारिया, जिन्होंने घर-बार भी गए दिते। एक मैं ये कहानी दसना थोड़ी जी। एक बारी क्या होया, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज का सम्मेलन उत्ते होना सी हरदा गुरुकुल कांगड़ी। स्वामी श्रद्धानंद रात को बिल्कुल नहीं सुते, अपनी जीवन कथा भी लिखते हैं और तुरी भी नहीं गए। सारी रात देखा कि हम ब्रह्मचारी उठने वाले हैं तो उन्होंने अपने मुंडे हरिचंद्र नूं ते इंदर नूं सद्या। उन्होंने मोरे कागज कर दिता, लो बच्चे पढ़ लो की है, इतने दस्तखत कर दियो। वो बच्चों ने की पढ़िया, उन्होंने की लिखा सी कि होशियार जंदर ने होशियारपुर अड्डे के मोहरे